اب یہاں سے آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، تل کا تو ہم استعمال کرتے ہیں فیمیل کے لیے اور انڈا ہمارے پاس ہوتا ہے مذکر، تو یہاں ہم تل کا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہیں سے ہمیں عربک کی جو فصاحت ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس نارملی انگلش اور اردو میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ چلتا ہے، عربک میں وہ کانسیپٹ لاگو نہیں ہوتا۔ جو فیمیل ہے وہ تو فیمیل ہوتی ہی ہے، لیکن اردو یا انگلش میں استعمال ہونے والے بہت سے میل ایسے ہیں جو عربک میں آ کے فیمیل بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ انڈا، ہم انڈے کو تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ انڈا مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن عربک میں اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں بھی گول تا آ رہی ہو وہ لفظ مؤنث تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربک میں آپ جس لفظ کے آخر میں بھی گول تا دیکھیں یا جس اسم کے آخر میں بھی گول تا دیکھیں، وہ اسم ہمیشہ سے فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اب دوستو، انگرابک چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ لیسن نمبر 17 ہے عربک اسپوکن سیریز کا، اور ہمارا ٹاپک آج کا ہے اسماء الاشارۃ للبعید۔ اسماء الاشارہ کون کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں کون سا اسم الاشارہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پہلے والے اسباق میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اب ہم شروع کریں گے وہ جو ہم دور کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ لازمی نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ عربک اسپوکن سیریز جو سٹارٹ کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ابھی عربی سیکھنا شروع کیے ہیں ان کی ہیلپ ہو جائے، وہ اس لیسن میں جوڑیں، اس سیریز کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ اتنی مفید ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ کو گرامر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنی آسان اور اتنی مفصل سیریز ہم نے شروع کی ہے۔ پہلے والے اسماک اگر آپ مس کر چکے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو ان سب کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں، یا پھر اوپر آئی بٹن میں ایک پلے لسٹ دے رہا ہوں، آپ اس پلے لسٹ کو لازمی وزٹ کیجئے، لیسن نمبر 1 سے شروع کریں اور لیسن نمبر 17 تک آپ تمام اسباق کو دیکھنا شروع کریں، آپ کو انشاءاللہ تمام چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی۔ اسماء الاشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا وہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بھی آگے مزید ڈویژن ہے کہ وہ قریب میں میل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا فیمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سنگل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا وہ پلورل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اس لیسن میں اسماء الاشارہ جو دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو مکمل لیسن ہے یہ سارے کا سارا لیسن ہوگا واحد کے لیے، یعنی کہ سنگل کے لیے۔ تو دور کی چیزوں کے لیے ہم نے جب بھی بات کرنی ہو تو ہمارے پاس دو اسماء الاشارہ ہیں، پہلا ہے تل کا، دوسرا ہے ذالکا۔ تل کا اور ذالکا، ان دونوں کا مطلب ہے وہ، اور اگر ہم میل اور فیمیل کے فرق کو سامنے رکھیں تو ہم جو ذالکا ہے وہ استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، اور تل کا استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے۔ اسی طرح میل کے لیے ہی اور انگلش میں فیمیل کے لیے شی۔ اگر وہ چیز بے جان ہے تو اس کے لیے ہم سمپلی دیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل ہمارا اوور ویو ہو گیا۔ اب نیچے میں نے وہی لکھا کہ دور کھڑے کسی شخص کے بارے میں سوال کرنا ہو، بات کرنی ہو تو ہم ذالکا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ عورت ہو اس کے بارے میں بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو تو ہم تل کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں۔ من ہذا، یہ کون ہے، ہو از دس۔ اب یاد رکھیے گا جو لفظ ہذا ہے یہ بھی اسم الاشارہ ہے، اور یہ ہے قریب کے لیے، یعنی کہ ایسا شخص جو آپ کے پاس کھڑا ہو، آپ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم ہذا استعمال کرتے ہیں۔ من ہذا، ہو از دس، یہ کون ہے، ہذا یاسر، دس از یاسر، یہ یاسر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا قریب کا۔ اب جب بات کریں گے ہم دور کے لیے تو ہم کہیں گے من ذالکا، من ذالکا، ہو از ہی، وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا الفاظ میں فرق آ چکا ہے دور اور نزدیک کے لحاظ سے۔ نزدیک کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے یہ، اور دور کے لیے وہ۔ من ذالکا، تو جواب ہے ذالکا عمار، ہی از عمار، وہ عمار ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذہن میں رکھیں
हमने जब लफ्ज ज़ालिका इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जिस शख्स के बारे में भी बात की, जिस चीज के बारे में भी बात की, ऑटोमेटिकली हमें ये पता हो कि वो हमसे डिस्टेंट पे है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास सेंटेंस है, ये मरीज है और वो डॉक्टर है। दिस इज पेशेंट एंड दैट इज डॉक्टर। ठीक है, तो आप इसको अरेबिक में कहेंगे हाज़ा मरीज, हाज़ा मरीज वज़ालिका तबीब, वज़ालिका तबीब। आप याद रखिएगा कि हाजा यानी कि दिस ये है इस्मुल इशारा करीब के लिए, और ज़ालिका यानी कि दैट ये इस्मुल इशारा है दूर के लिए। तो मतलब क्या हुआ, मरीज आपके पास खड़ा है और डॉक्टर आपसे दूर है। हाजा मरीज, ये मरीज है, दिस इज पेशेंट, व ज़ालिका तबीब, और वो डॉक्टर है, एंड दैट इज डॉक्टर। अब सेम वही सिनेरियो हमारे पास है, ये डॉक्टर है और वो नर्स है। ये डॉक्टर है और वो नर्स है, दिस इज डॉक्टर एंड दैट इज नर्स। अब यहां से आपको क्या मालूम हुआ कि डॉक्टर इस केस में आपके पास खड़ा है या खड़ी है, और जो नर्स है वो आपसे दूर है। तो डॉक्टर चूंकि आपके करीब खड़ी थी, इसलिए आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है हाज़िही, हाज़िही, हाज़िही तबीबा, ये डॉक्टर है, दिस इज डॉक्टर, वतिल्का मुमर्रिज़ा, एंड दैट इज नर्स, और वो नर्स है। हाज़िही तबीबा, ये डॉक्टर है, दिस इज डॉक्टर, वतिल्का मुमर्रिज़ा, एंड दैट इज नर्स, और वो नर्स है। ठीक है, अब आपने दूर और नजदीक के लिहाज से अस्माउल इशारा जो करीब का है वो भी इस्तेमाल कर लिया है इसमें। करीब का क्या है, हाज़िही, और ये है फीमेल के लिए, और तिल का क्या है, दूर के लिए, और ये भी इस्तेमाल किया हमने फीमेल के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चल के इसके मजीद एग्जांपल्स लेते हैं। अब सेंटेंस हमारे पास एक और है, वो हिंदुस्तान से है और वो जापान से है। अब इस केस में दोनों जो हैं वो डिस्टेंस पर हैं, दोनों दूर हैं, इसलिए दोनों के लिए हमने इस्तेमाल किया वो। अब मेल और जो फीमेल का फर्क है वो आपको इस तरह उर्दू में मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश और अरेबिक पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। ही इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है। अब हमने यहाँ पर ही इस्तेमाल किया तो मतलब क्या हुआ कि जो ये ही है, ये आदमी है, ठीक है, यानी कि ये लड़का या आदमी। ही इज फ्रॉम इंडिया एंड शी इज फ्रॉम जापान, एंड शी इज फ्रॉम जापान, और वो जापान से है। ही इज फ्रॉम इंडिया, वो आदमी इंडिया से है यानी कि हिंदुस्तान से है, और वो लड़की जापान से है। ذَلِكَ मिनल हिंद, ذَلِكَ मिनल हिंद वतिल्क मिनल याबान, ذَلِكَ मिनल हिंद वतिल्क मिनल याबान। ذَلِكَ हमने अगेन इस्तेमाल किया मर्द के लिए, और वतिल्क मिनल याबान, तिल का इस्तेमाल किया हमने लड़की के लिए, फीमेल के लिए। He is from India and she is from Japan. ذلك من الهند وتلك من اليابان. वो छोटी है और वो लंबा है। अब इस केस में दोनों जो हैं वो आपसे फासले पे हैं, दोनों दूर हैं। तो अगेन आपने यहाँ पर जो अस्माउल इशारा हैं दूर के, वो दोनों इस्तेमाल करने हैं। शी इज शॉर्ट एंड ही इज टॉल, वो छोटी है, शी इज शॉर्ट, ही इज टॉल, वो लंबा है। तो शी इज शॉर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जुमला तिल का कसीरा, तिल का कसीरा, वो छोटी है यानी कि उसका कद छोटा है, कसीरा, तिल का कसीरा। अब यहाँ पर हमने तिल का इस्तेमाल किया क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं। वज़ालिका तवील, वज़ालिका तवील, एंड ही इज टॉल, और वो लंबा है, और वो लंबा है। वज़ालिका तवील, वज़ालिका तवील, ठीक है, ज़ालिका इस्तेमाल किया क्योंकि ये हम आदमी की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से आपको अच्छी तरह जहन में बैठ गया होगा कि तिलका और ज़ालिका का इस्तेमाल हमने कब और कैसे करना है। आगे एक और हमारे पास मिसाल है,
अतिल का दजाजा, अतिल का दजाजा, क्या वो मुर्गी है? इज दैट hen, इज दैट hen। अब यहाँ पर तिल का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने सवाल किया था फीमेल के बारे में। दजाजा बोलते हैं मुर्गी को, तो मुर्गी चूंकि मुअन्नस होती है इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया तिल का। तिल का दजाजा, इज दैट hen, क्या वो मुर्गी है? लेकिन ये शेप जो है, ये इमेज बता रही है कि ये मुर्गी नहीं है, तो हम कहेंगे ला, नहीं। तिल का बत्ता, तिल का बत्ता, नो। दैट इज डक, नहीं वो बतख है। ठीक है, सवाल क्या था कि क्या वो मुर्गी है? इज दैट hen, अतिल का दजाजा, आपने कहना है नो, दैट इज डक, ला, तिल का बत्ता, तिल का बत्ता वो बतख है। मैं तिल का, वो क्या है? व्हाट इज दैट? मैं तिल का, वो क्या है? मैं तिल का, तिल का बैदा, तिल का बैदा, दैट इज एग, वो अंडा है। तिल का बैदा, दैट इज एग, वो अंडा है। अब यहां से आपके जहन में एक बात आ रही होगी, तिल का तो हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए और अंडा हमारे पास होता है मुजक्कर, तो यहां हम तिल का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब यहीं से हमें अरबिक की जो फसाहत है वो हमारे जहन में आती है कि जिस तरह हमारे पास नॉर्मली इंग्लिश और उर्दू में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट चलता है, अरबिक में वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। जो फीमेल है वो तो फीमेल होती ही है, लेकिन उर्दू या इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले बहुत से मेल ऐसे हैं जो अरेबिक में आके फीमेल बन जाते हैं। जैसे कि अंडा, हम अंडे को तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये अंडा मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन अरेबिक में इसको मुअन्नस कंसिडर करते हैं। वो इसलिए कि इसके आखिर में गोल ता आ रही है। तो जिस लफ्ज के आखिर में भी गोल ता आ रही हो वो लफ्ज मुअन्नस तस्लीम किया जाता है। ठीक है, अरेबिक में आप जिस लफ्ज के आखिर में भी गोल ता देखें या जिस इसम के आखिर में भी गोल ता देखें, वो इसम हमेशा से फीमेल कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर वही बात लागू होती है, तिल का बैदा, वो अंडा है, दैट इज एग। बेशक ये इंग्लिश और उर्दू में मेल है, लेकिन अरेबिक में हम इसे फीमेल कंसिडर करेंगे। अब हमारी ये प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि तिलका और ज़ालिका दोनों अस्माउल इशारा जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो इंसान हो, हैवान हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कोई बेजान चीज़ हो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। अंडा बेजान चीज़, हमने इसको भी देख लिया। अब ये जानवर है, इसको भी देख लिया, और पीछे हम इंसानों का जिक्र तो करके आ ही चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, उसकी करते हैं प्रैक्टिस। ये उस्ताद की गाड़ी है और वो हेडमास्टर की गाड़ी है। दिस इज टीचर्स कार एंड दैट इज प्रिंसिपल्स कार। तो क्या मालूम हुआ कि उस्ताद की गाड़ी पास खड़ी है और हेडमास्टर की गाड़ी दूर खड़ी है। आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस व तिल्का सय्यारतुल मुदीर। हादिही इस्तेमाल किया क्योंकि कार जो है वो मुअन्नस होती है, अरबिक में भी इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने हादिही इस्तेमाल किया। और तिल्का हमने इस्तेमाल किया दूर के लिए। ठीक है, हादी इस्तेमाल किया पास के लिए और तिल का इस्तेमाल किया दूर के लिए। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस व तिल्का सय्यारतुल मुदीर। वो मुर्गा है और वो मुर्गी है, तो दोनों जो है वो फासले पे हैं, दोनों दूर हैं। दैट इज कॉक या फिर रोस्टर एंड दैट इज hen, वो मुर्गा है और वो मुर्गी है। तो ज़ैलिका दीक, ذَلِكَ दीक वो मुर्गा है, वतिल्क दजाजा और वो मुर्गे हैं। ठीक है, दीक बोलते हैं मुर्गे को, रोस्टर को यानी कि कॉक को, और दजाजा बोलते हैं हेन को, मुर्गी को। ذَلِكَ दीक वतिल्क दजाजा, वो मुर्गा है और वो मुर्गी है। इस स्लाइड तक आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो तिल्का और ज़ालिका की बहुत अच्छी तरह हो गई है। अब यहाँ पर आपके करने का काम ये है कि आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है लफ्ज़ों की मुनासबत से, मेल और फीमेल को जहन में रखते हुए, तिल्का और ज़ालिका से। आप जब ये कर लें अपने जवाब सेंड कर दीजिएगा हमें व्हाट्सएप नंबर पर।
واٹس ایپ نمبر آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔